Has the meeting started? Has the meeting started? It's starting in 2 minutes. No. It hasn't started. Just starting in 2 minutes. Hi all. Today I have a class on salads, as you all know. Salads as an appetizer, it could be main important thing in a salad is that it should be healthy because we are saying salads. So gone are those days, when you used to have salads with lots of mayo, those Russian salads. When I was growing up, that Russian salad was so popular, having lots of mayo, lots of cream. So in today's salad, don't have all that because all that is really passe. Now, when you think of salads, it is, there are three things in making a salad. First of all, there are the leafy greens. Now when you think of leafy greens, there is a lot of variety today. We have the romaine lettuce, which is the curly lettuce, jo aam salad patta जिसे हम कहते हैं. We have that goal salad, जिसको हम iceberg कहते हैं. We can use rocket leaves. Rocket leaves may be a little difficult to find sometimes. So I have, this is the color of the rocket leaves. It's nice, vibrant green, unlike the lettuce, matlab it's a dark green. तो इसकी जगह ये अगर रंग देखो तो ये पालक जैसा रंग लगता है इसका, तो आप इसकी जगह पालक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और तो स्पिनच हो गया, रॉकेट हो गया, आइसबर्ग हो गया, एक आपका रोमेन लेटस हो गया, एक बॉस्टन लेटस भी आती है, विच इज नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया. बाहर यूएस में बहुत यूज करते हैं. बॉस्टन लेटस इज इन बिटवीन आइसबर्ग एंड रोमेन लेटस. मतलब जो कप्स, जैसे हम लेटस कप्स बनाने के लिए, वो बहुत पॉपुलर होती है बॉस्टन लेटस. Now, besides the leafy greens, there are a lot of vegetables. Now, the vegetables can be raw, or they could be roasted or pan grilled. So I have kept a salad जिसमें कच्ची सब्जियां भी हैं और एक में cooked भी हैं या roasted भी हैं. तो I've tried my best to use different kinds of vegetables, different kinds of green. And the third is a little bit of protein, which could be in the form of a cheese. So I've tried to use different kinds of cheeses to show to you and how to use them, how to store them.
एंड चीजेस के अलावा थोड़े से नट्स भी होते हैं. जो चिकन खाते हैं, प्लीज बेयर विद मी, क्लास के बाद हम चिकन के ऑप्शंस भी आपको बता देंगे. और ऑफ कोर्स द मेन इज द ड्रेसिंग. नाउ द ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ड्रेसिंग शुड नॉट बी सो मच दैट वो बिल्कुल गुतावा सा या बिल्कुल मशी सा सैलेड हो जाए, पर इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि आपका सैलेड सूखा सूखा लगे. So the quantity of the dressing is very important. When I give you a recipe for a dressing, and when you're making it, you don't have to pour the whole dressing. Now pour से याद आया, थोड़ी सी pouring consistency होनी चाहिए dressing की, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं. तो अगर आपकी गाढ़ी हो बहुत ड्रेसिंग्स, तो थोड़ा सा पानी या तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पतली करने के लिए ड्रेसिंग्स को. तो ड्रेसिंग्स की क्वांटिटी, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि एक गाजर, अब गाजर आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. अब माइक इज नॉट क्लियर. अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके. Now just a request to all of you, please mute your mics and close your videos, because आपको फिर ज्यादा अच्छी तरह मैं दिखाई दूंगी, मेरी बातें सुनाई देंगी, connectivity issues नहीं आएंगे. Thank you so much. Now to proceed, we would first be doing the arugula. Now arugula and rocket leaves is the same thing. So उसका arugula नाम भी है और rocket भी है, जो मैंने आपको दिखाई थी. In salsa, now the salsa can be cooked, it can be raw or mildly cooked. It can be very hot, it can be mild, as to your taste. Now cheese is feta in this, so let's start with the salsa first. And this salsa, why this salsa? All the dressings that I'm going to teach you can be used as a dip with your nachos or with your crudits, your vegetable sticks. उनकी तरह भी आप उनके साथ भी वो ड्रेसिंग्स सर्व कर सकते हैं, लाइक अ प्लैटर ऑफ ड्रेसिंग्स और अ चीज प्लैटर. उसमें ये ड्रेसिंग्स जो है उनको डिप की तरह, बस अगर डिप की तरह रखेंगे तो थोड़ी गाढ़ी बनाइए, और अगर ड्रेसिंग की तरह यूज करेंगे तो थोड़ी सी पतली होगी ये. ओके, नाउ लेट्स मेक द साल्सा फर्स्ट. साल्सा के लिए सबसे पहले 3 टमाटरों को ऐसे काला कर लेना. अब इंडक्शन पे ये काले नहीं हो सकते, तो मैंने काले करके रखे हुए हैं ये. आप इनको ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, और आप इन्हें जैसे भरता भूनते हैं उस तरह भी आप इसे काला, अच्छा काला कर लेंगे इसे टमाटरों को. आप ये देख रहे हैं मैंने प्याज भी रोस्ट किया है इसके अंदर. सो आई एम यूजिंग रोस्टेड अनियन एंड roasted tomatoes for this salsa. Now the first thing that you do is you remove this काला काला छिलका. अच्छा, अब टमाटरों को चाहे वो भरता बना रहे हो या आप सालसा बना रहे हो, we have a tendency कि अब चलो पानी के नीचे रख देते हैं और इसका छिलका उतर जाएगा. Even my help says that I don't do that, because you know and I make it a point to wash the vegetables nicely before I roast them. क्योंकि अगर मैं ये काला करने के बाद धोऊंगी तो क्या होगा, जो स्मोकी फ्लेवर है वो भी सारा निकल जाएगा. तो ऐसे आपने इसको छील लेना है टमाटर को. तो ये टमाटर हमारा छिल गया. ऐसे ही ये जो प्याज रोस्ट किया था, ये आधा मैंने, छोटा सा प्याज, ज्यादा प्याज नहीं लेना आपने सालसा के लिए. अगर प्याज रोस्ट नहीं करें और सालसा अगर आप अनकुक्ड बना रहे हैं, अगर कुक्ड सालसा बना रहे हैं तो प्याज आप बिना रोस्ट करे भी रख सकते हैं. पर अगर आप अनकुक्ड बना रहे हैं जैसे कि हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सालसा है वो प्याज जो है कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लिया. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज यू जस्ट कट योर टोमेटो इनटू हाफ, और इसके मैं करूंगी 4 हिस्से. 4 हिस्से करके मैं इसके ये जो बीज हैं, आई डोंट वांट दी सीड्स, तो मैं इसके बीज हैं इनको ऐसे निकाल लेती हूँ. अब मेरे पास ये टमाटर रह गया. थोड़ा सा काला रह जाए तो कोई परेशानी नहीं. वीडियो चला गया. हाँ जी, वीडियो चला गया. एक सेकेंड, वॉइस आ रही है बस. अब ठीक है, अब ठीक. अच्छा, सॉरी.
कुछ मिस किया आप लोगों ने अभी? अच्छा, अब टमाटर को आपने रोस्ट कर दिया, छिलका निकाल दिया, उसके बाद 4 हिस्से करके अब मैं क्या निकाल रही हूँ, इसके बीज। तो बीज ऐसे फेंकने नहीं चाहिए। आप कोई सब्जी बना रहे हो, कोई भी राजमा या घर में सब्जी बन रही है, उसमें आप डाल दीजिए। ओके, नाउ अब हमने टमाटर को बिल्कुल फाइनली चॉप करना है, जिसको हम बोलते हैं मिन्स। तो आपने बड़ी छुरी ले लीजिए और ऐसे मिन्स करिए, झटपट हो जाता है। इफ यू टेक अ स्मॉल नाइफ तो वो नहीं होता, थोड़ा सा कई बार हम शुरू में कई बार आप घबराएंगे बड़ी छुरी, पर बड़ी छुरी से बहुत जल्दी मिन्सिंग करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी ऑलिव टेपिनाड सिखाया था इटालियन में, तो उसमें भी ऐसे ही ऑलिव्स मिन्स करे थे। तो ये इतने अच्छे बारीक मिन्स हो जाते हैं इफ यू हैव अ नाइस शार्प नाइफ। पर बातें मत करते करते करिए, जरा सा लगने का डर रहता है। ये जरा सा हार्ड है, इसको निकाल देती हूँ मैं। ओके, अब ये प्याज को भी मैं ऐसे चॉप कर लेती हूँ। ये प्याज तो मेरे पास चॉप्ड था वैसे, चलो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, ज्यादा हो जाएगा प्याज। अब सारा टमाटर प्याज इकट्ठा करके अब आपने कैसे करना है, इसको जरा सा स्पेस बना लेती हूँ, हाथ चल जाना चाहिए। एक साइड से छुरी को पकड़ के रखिए और दूसरी साइड से ऊपर नीचे करिए। आपका सालसा अच्छा नहीं बनेगा अगर आपके ये जो टमाटर प्याज है ये ठीक से मिन्स नहीं होगा। हमारी नेक्स्ट जो सैलेड है वो रोस्टेड है, तो इसलिए ये ओवन मैंने प्री हीट कर दिया था। नाउ आई हैव दिस डन। 2 टमाटर किए हुए हैं और थोड़ा सा प्याज किया था। अब मैं इसके अंदर बाकी का डाल लेती हूँ। नाउ इसके बाद just clean this up. Use the other side. Okay. Now, what are the other things needed for a salsa? Now, it's a good idea to make it in a jar, क्योंकि जितना यूज हुआ, बाकी बच्चों को या घर में आप नाचोस के साथ या कूदित्स के साथ किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है, अगर आप ड्रेसिंग या ऐसी चीजें जार में बनाएं तो यू कैन स्टोर देम लॉन्गर विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। ढक्कन लगा होता है तो अच्छी रहती हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल है, मैंने डाल के रखा है टू सेव टाइम। तो 1 टेबलस्पून ऑयल है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये टमाटर और प्याज, रोस्टेड टोमेटो एंड रोस्टेड अनियंस। और अब क्या जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च एंड रोस्टेड क्यूमिन। क्यूमिन मतलब जीरा पाउडर, और जो मैक्सिकन खाना उसमें जीरा पाउडर इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डाल दी। क्या क्या मैक्सिकन खाने में इंपॉर्टेंट होता है? लाइम जूस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने डाला 1 छोटा चम्मच। नींबू का रस, क्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गार्लिक, अगर तो मैं सालसा पका रही होती तो मैं गार्लिक कच्चा डाल देती और साथ में भून लेती प्याज के, पर क्योंकि मैं सालसा पका नहीं रही हूँ इसलिए मैं गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अबाउट 1/4 to ½ टीस्पून। और अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं, ना डालें बेशक। अगर थोड़ा सा इफ यू लाइक योर salsa a little spicy, you can add a little tabasco to it, just a few drops. Again, this is optional. हमने इसमें हरी मिर्चें तो डालनी है, सो हिसाब से। ये याद आ गया, हरी मिर्चें तो ये आप मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा कोरिएंडर, प्रेफरेबली द स्टॉक पोर्शन। गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं आप या गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा धनिया डाल दिया और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, ये ज्यादा है धनिया, मैं बहुत ज्यादा नहीं डाल रही। और अब थोड़ा सा इसका पानी छोड़ता है ये, तो उस पानी को पकड़ने के लिए, ताकि जो सालसा है आपका प्लेट में जब हम डालते हैं तो पानी अलग हो जाता है,
a little bit of tomato ketchup adds to the taste and the consistency. तो about 2 teaspoons के करीब मैंने tomato ketchup डाल दी. तो अब I think हम सारी चीजें डाल चुके हैं and we can give it a good shake. See, now when you make it in the jar, it becomes so much easier to shake, blend and store. And इतना सारा use नहीं होगा पूरा. But if you are making for a large gathering, हो भी सकता है, और जो नहीं होगा, you can always use it later. But remember, this is not a बाजार का सालसा, तो आप ये मत सोचो कि 15 दिन रह जाएगा. टमाटर की चीज है, 2-3 दिन में आपको इसे इस्तेमाल कर लीजिए and refrigerate करिए. Okay. Now, next हम करते हैं. Let me just. We are using charred corns in this. We are using corns. और कॉर्न्स को हम थोड़ा सा चार करेंगे. तो मैंने पैन ऑन कर दिया है और सालसा को मैंने मिला तो दिया था. मैं एक बार टेस्ट भी थोड़ा सा कर लेती हूँ. I've used Kisan. It really doesn't matter. Whatever you have at home is good enough. हाँ, ketchup. Kisan की ketchup. How much quantity for paste? For garlic paste, half a teaspoon is good enough. How can you toast tomato and onion? How can you? Toast. Okay. Tomato and onion. आपने रोस्ट कैसे करना है? This is just fine. It's nice. तीखा भी है, हरी मिर्ची का, लहसुन का भी फ्लेवर आ रहा है, और tomato sauce is giving that kick, and Tabasco. So our salsa is done. Now somebody just asked me, रोस्ट करना है आपने टमाटर को. तो आप लोग अगर घर में भरता बनाते हैं तो उसी तरह कई बार तो लोग एक जाली रख लेते हैं उसके ऊपर, गैस के ऊपर, और ऊपर टमाटर. बट इट नीड्स अ नेकेड फ्लेम फॉर इट. यू वोंट बी एबल टू डू इट ऑन द इंडक्शन. आप कर सकते हैं वैसे इंडक्शन पे भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत टाइम लगेगा. और यू पुट इट इन द ओवन टू रोस्ट. थोड़ा सा आप छिलके धो लीजिए, छिलके पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर रोस्ट करिए, तो छिलका उतारना भी आसान हो जाता है. ऐसे ही प्याज को छील के रोस्ट करना है, टमाटर को बिना छिले रोस्ट करना है. When I say refrigerate, I mean in the fridge. Can we skip corn? Yes, अगर आपने कॉर्न नहीं लेना हो तो आप कॉर्न ना डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Garlic mince can be added. आप गार्लिक मिंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर. Okay, now I'm doing the corn. About 250 grams of tomatoes are used for this quantity of salsa. Now corn को आपने ज्यादा हिलाना नहीं है और पैन को भी आपने अच्छा गरम कर लेना है. ये देखो, when I turned, I just saw this. I had made this. You can serve your salads in a glass also if you like. They look very pretty in a glass. But this is restaurant style cooking. But I'm going to teach you home style. So अगर restaurant में मतलब अगर घर में restaurant style करना है with just a few and it's a sit down dinner or something, then you can do this individual servings. Any corn can be used. अच्छा, ये ले. ये कॉर्न हो गया है और अगर आप देखें तो इसमें ये ब्राउन ब्राउन डॉट्स नजर आ रहे हैं. दैट मींस इट्स नाइस एंड चार्ड. यस, आई हैव नॉट एडेड एनी ऑयल. ऐसे ही बस ऑयल डालोगे तो ये रोस्ट भी नहीं होंगे ठीक से. सो बिना तेल के आपने इसे रोस्ट किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर ग्रीन्स. आई सेड लीफी ग्रीन्स. वो कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं दिखाऊं आपको लीफी ग्रीन्स. आपको रॉकेट तो मैंने दिखाया था अभी, पर for just who have come a little late maybe, these are rocket leaves and they are, अगर इसको मैं मुंह में डालती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं मूली का पत्ता खा रही हूँ. तो they are in between, इसको बंद कर देती हूँ. They are in between a मूली and a पालक का पत्ता. रंग पालक की तरह है पर मूली जितना तीखा नहीं है, but it has that bitterness. So that is why इसके साथ थोड़ा सा दूसरा पत्ता भी यूज करना चाहिए. सिर्फ अगर इसका बनाओ, इसका सैलेड बनाओ तो थोड़ा सा कोई फ्रूट जैसे कि पेयर्स,
बबूगोशा या नाशपाती या एप्पल थोड़ा सा मिलाओ टू कट डाउन ऑन दैट बिटर और दैट डिसर्निंग टेस्ट जो इसका होता है थोड़ा सा एक। तो ये मैंने इसी में पानी में भिगो के रखा है। जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाट द रॉकेट लुक्स लाइक। इट इज अ नाइस कटा हुआ पत्ता होता है, जैसे ऐसे पत्ते होते हैं। ओके, अब ये मैंने 2 स्प्रिंग अनियंस तो सिर्फ सजाने के लिए रखा हुआ था, तो जरूरी नहीं है। अगर आप गार्निश करना चाहते हो तो आप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स भी पानी में डाल दो। अब आप देखिए मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये गाजर लेकर मैंने पीलर से इसे ऐसे लंबे लंबे ऐसे निकाल लिए। अब इतने लंबे शेविंग्स तो मुंह में आएंगे तो मुझे तंग करेंगे, तो मैं थोड़ा सा तोड़ देती हूँ कई बार शेविंग्स को, अगर गाजर लंबी है तो। ऐसे ही मैंने जो गाजर के निकाले हैं, ऐसे ही मैंने निकाले हैं मूली के और खीरे के। ये आप देख रहे हैं मूली के, खीरे के और प्याज के मैंने निकाले हैं ऐसे रिंग्स, गोल गोल काटे हैं। पत्ते मेरे पास ये पालक के हैं। अगर ये बहुत बड़ा पत्ता है, छोटे, एक्चुअली कायदे से तो बेबी स्पिनच आती है, बाहर तो बहुत मिलती है, यहाँ कई बार नहीं मिलती, तो आप जो अपने पालक के पत्तों के अंदर के जो छोटे पत्ते हैं उनका इस्तेमाल करें। पर अगर आपके पास बड़े पत्ते ही हैं तो ये जो हार्ड स्टेम है ये इसकी निकाल दें या इसको 2 में कर दीजिए। वैसे भी इतना बड़ा पत्ता तो खाना नहीं है, तो ये बीच की जो डंडी है आपकी, इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये पालक की पत्तियां ऐसे तोड़ लीजिए। और ये मेरे पास लेटिस है, जो इसको आपने ऐसे टुकड़े कर लेने हैं। ये टुकड़े किए हुए हैं, बाइट साइज पीसेस। ये पालक है, इसको देखिए मैं ये डंडी निकाल रही हूँ, ये कर लेती हूँ। और अब इसको मैंने रखा कैसे, इतनी ग्रीन कैसे लग रही है ये इसको इधर कर देती हूँ। ये इतनी ग्रीन कैसे लग रही। नाउ हाउ टू यूज योर greens for the salad, this is very important. Now first of all you need to soak them in water. Now what kind of water? बिल्कुल ठंडा पानी। अगर फ्रिज का पानी बहुत ठंडा नहीं है तो उसमें 2-3 बर्फ के टुकड़े डाल लीजिए। तो एक बड़ा सा पतीला या बोल ले लीजिए, मिक्सिंग बोल या एनी स्टील का पतीला, पानी भरिए, खूब सारी उसमें बर्फ डाल दीजिए ताकि पानी इज एब्सोल्युटली चिल्ड, और उसमें ये पत्ते डाल दीजिए और 2-3 घंटे के लिए भिगो लीजिए। नाउ रिमेम्बर 2-3 घंटे। अगर आप बोलो कि आज आपने सैलेड, जैसे मैंने आपको अभी सिखाना था 5 बजे, और मैं कल शाम को या रात को सैलेड की पत्तियां डाल देती, तो क्या होता, पत्तियां सारी गल जाती। तो आपने ओवर भी नहीं सोक करना है। और अगर जैसे आपने सोक करी हुई है और बच गई हैं तो पानी से निकाल कर, जैसे ये मैंने सोक करी थी अबाउट दोपहर को 12-1 बजे सोक कर दी, और मैंने अभी 3-4 बजे इसे पानी से निकाल दिया क्योंकि मुझे यूज करनी थी। कुछ में तो मैंने छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए, इसे मैंने पानी से निकाल दिया क्योंकि मुझे लगा बहुत देर भी पानी में नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज all your greens या onions और कैरेट और एंड मूली के जो रिबन्स या शेविंग्स हैं उनको आप पानी में भिगो जरूर, ठंडे पानी में, पर 3-4 घंटे से ज्यादा ना भिगोएं, फिर वो गलने लग जाते हैं। तो 3-4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, छन्नी लेनी है और आपने ये पत्ते ऐसे निकालने हैं सारे, इसमें पानी है नीचे, और ये इतने बड़े बड़े पत्ते नहीं रखेंगे हम। ये देखिए मैं पानी डालती हूँ, ये कितना पानी है इसके अंदर नीचे, मैंने हालांकि पानी से निकाल दिया था। तो ये सारे मैंने पानी से निकालूंगी। अच्छा, अब ज्यादा दबाना भी नहीं है सैलेड को। दीज थिंग्स पहले सैलेड में थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे ताकि मैं आपको क्लियरली सारी बातें बता सकूं। और अब हमने करना क्या है, अब हमने लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कपड़ा लेना है कॉटन जो आपका अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करे पानी को, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, देखिए ये पत्तियां। अब जहां भी मुझे बड़ी पत्ती लगती है अब मैं तोड़ती जाऊंगी। थोड़ी सी मैं डेकोरेशन के लिए मैं ये 1-2 मूली और 1-2 गाजर निकाल लेती हूँ ऊपर लगाने के लिए, ये मैं अलग रख लेती हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ आधी तरफ, ये बड़ी बड़ी पत्तियां हटा रही हूँ, छोटी कर रही हूँ मतलब। मेरे पास इसमें क्या क्या है, रोमेन लेटस है,
मेरे पास स्पिनिच थोड़ा सा मैंने डाल दिया, रॉकेट डाला था पर स्पिनिच भी डाल दिया आपको दिखाने के लिए, और शेविंग्स या रिबन्स जिसको हम बोलते हैं, और इसे अब बड़ी लाइटली आपने स्क्वीज करना है, आपने जोर से नहीं करना है, इसको बड़े प्रेम से हल्के हाथों से इसे करना है। सो फॉर एनी ग्रीन्स सैलेड में यूज करने के लिए आपने ये करना है। इसके बाद इन ग्रीन्स को हम ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में, मिक्सिंग बोल में, और हमेशा, अब थोड़े और छोटे कर लेती हूँ, कुछ थोड़े मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, थोड़े और छोटे कर लेती हूँ, और हमेशा इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, ये बहुत जरूरी है, हल्का सा ऑयल, और प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल। ऑयल क्यों डालते हैं हम, क्योंकि अभी जो आपकी ये जो पत्तियां हैं इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो ये ड्रेसिंग जब डालेंगे तो लिम्प हो जाएंगी। तो अगर आप ऑयल डाल के थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर देंगे तो ये आपकी लिम्प नहीं होती है। चलिए, अब आपकी ये भी हो गई ड्रेसिंग। अब इस सैलेड में और क्या क्या है, पत्तियां बन गई हमारी, फेटा है। अच्छा, इसमें एक चीज और मिलानी थी हमने, और ये भी कर लेते हैं, रेड कैबेज भी मिला सकते हैं। I've tried to use all kinds of things to give you an idea. If you don't have one thing, don't worry. Just दूसरी चीजों को बढ़ा दें। अगर रॉकेट नहीं है तो रोमेन लेटस थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा सा पालक बढ़ा दें। ये नहीं है तो हरी पत्ता गोभी डाल दें। हरी पत्ता गोभी भी नहीं डालना चाहते तो दूसरी पत्तियां ही थोड़ी सी आइसबर्ग डाल दीजिए। They want to see romaine leaves. Okay. लेटस ला दो जो डंडी वाली है, मतलब रोमेन वाली। इसको, हाँ, इनको फ्रिज में डाल, इनको आपने हाँ, इनको आपने पानी में डालकर और फ्रिज में रखना है, फ्रीज नहीं करना है। ये होती है आपकी रोमेन लेटस। ये, और आइसबर्ग भी दिखा दो, ये होती है रोमेन जो आपकी गुच्छे की तरह आती है, या कर्ली लेटस जिसे हम बोलते हैं। मैंने इसमें ये रेड कैबेज भी डाल दी, और इसको भी अब मिला देती हूँ ताकि जो ऑयल था वो भी, अब ये ले जाओ। ये है देखो आइसबर्ग, ये थोड़ी सी जैसे बारिश की वजह से ना गलने लग जाती है, ऐसे पत्ता गोभी की तरह ये होती है। ओके, और इसको भी मैं मिला देती हूँ। अब इसमें मैंने आवाकाडो डाला है। अगर आपके पास आवाकाडो है तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो उसकी जगह हम ब्रोकली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी जगह ये देखो, इस पे कैसे शाइन सी आ गई है अच्छी, थोड़ा सा ऑयल डालने से। अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। 1 टेबल स्पून लिखा है, आप लोग रेसिपी में आप 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है तो मैं कम कर देती हूँ। अच्छा, अब ये आवाकाडो भी करूंगी, पहले ब्रोकली बता देती हूँ आपको। ये ब्रोकली के फ्लोरेट्स को मैंने ब्लांच करके रखा है, और कैसे ब्लांच किया है नोट में आपकी रेसिपी में दिया हुआ है। हमेशा जब ब्रोकली उबालो तो पानी के साथ नमक और चीनी, थोड़ी सी चीनी डालने से जो आपकी ब्रोकली है वो खूब हरी हो जाती है। तो मैंने क्या किया, आपको बिल्कुल रेसिपी में दिया हुआ है, पानी उबाला और 3-4 कप, उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया, और 1 छोटा चम्मच चीनी का डाला। जैसे ही उबाला आया उसमें, तब मैंने ब्रोकली डाली, पहले नहीं डाली। तब ब्रोकली डाली और बस आधा मिनट उबाला। अब तो मौसम ठीक हो रहा है तो आधे 1 मिनट में हो जाएगी। अगर बहुत गर्मी के मौसम में होता है तो कई बार आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। और ब्रोकली डाली और निकाल के, और फिर मैंने चेक कर लिया उसका स्टेम टेंडर, क्रिस्प टेंडर। सैलेड के लिए तो बहुत वो नहीं होनी चाहिए, तो क्रिस्प टेंडर चाहिए, तो वो मैंने निकाल ली और फिर पानी के नीचे रिफ्रेश कर ली। टैप वाटर में, अगर कोल्ड वाटर में करो तो और अच्छा है, नहीं तो टैप वाटर में भी कर सकते हो। थोड़ा सा बटर डाल के करने से ब्रोकली का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो चलिए, ये ब्रोकली मैं निकाल देती हूँ अब, और मैं इसके अंदर आवाकाडो भी चार करना। अब आवाकाडो को आपको चार करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप चार करोगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नाउ आवाकाडो कैसे खरीदना है ये सब मैं बताती हूँ। लेट मी यूज अ क्रिंकल नाइफ फॉर दिस। आई फॉरगॉट, इसमें यूज कर ले तो अच्छा रहता है। ओके, चारों तरफ से घुमाइए
फॉर्चुनेटली आज अच्छा निकला है. बड़ा ही ट्रिकी होता है, कभी अच्छा निकल जाता है, कभी बहुत तंग करता है. So that is why you should always have a substitute. Now you can just इसको आपने स्कूप करना है, चारों तरफ से ध्यान से घुमा लीजिए. ये बंद कर देती हूँ, ज्यादा गर्म हो रहा है. Now just a wee bit of butter. आपके रेसिपी में 1 टेबलस्पून लिखा है, मत लिखिए 1 टेबलस्पून मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज वेरी बटरी. So let's not add too much. अब मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ा सा चार होने के लिए. ओके. नाउ ये ले लो. जो आधा आवाकाडो बचा है, इसको कैसे करें? We've spent a lot of money on it, so we don't want to waste it and we don't need so much. This is a very big avocado, so you can use half. इसके ऊपर नींबू का रस डालिए थोड़ा सा. हाँ, अभी बताती हूँ. थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और इसके बाद ये सीड मत निकालिए, सीड रहने दीजिए और इसको रैप करिए और इसे फ्रिज में रखिए. पर एक आध दिन में खा लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं रहता है. ओके, ये जल ना जाए, इसको बंद कर देते हैं. और ये ब्यूटीफुली चार्ड. सी आई डिडंट डू एनीथिंग टू इट, बस ऐसे ही मैंने इसे चार कर लिया था. सो आई हैव माय ब्रोकली, आई हैव एवरीथिंग. अब रह गया नाउ वेयर टू गेट एवोकाडो. समबडी आस्क्ड मी. जहां अच्छा मिल जाए, अच्छी से अच्छी जगह पे भी एवोकाडो लेने जाओ तो तंग करता है. 1 मिनट वो एवोकाडो अनीता दिखा दो मुझे, इनके बारे में बताना था. नाउ जब आप एवोकाडो खरीद रहे हो तो उसकी जो ये पीछे की ये है डंडी होती है, यहाँ पे हटाइए. और ये अगर तो ये साइड्स गले हुए हैं तो आपका एवोकाडो ओवर राइप है. बहुत हार्ड है तो एवोकाडो कच्चा है. तो अगर इट शुड बी अंदर से ग्रीनिश, बहुत काली नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड फील जस्ट राइप. हाथ लगाओ तो दबना चाहिए पर बहुत नहीं दबना चाहिए. ग्रीन या ब्लैक का इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर्पल का कोई भी वैरायटी हो. It should just be a little soft when you press it. तो ये आप देख लीजिए. Okay, you can just they can view the video on the website. We are integrating this. Okay. So they can view the website on the app. During this week, they will all get their passport to all the attendees. Okay. Now हमने आपके लिए सोचा, कई लोगों के यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि कैन वी सी द वीडियो वंस, एंड कई बार लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं. So we've now included this in the course that you will be able to see the video, but just once, and you will get a password for it, And you can and you can go to the website. go to the website for it. For more details, email कर लेना, कोई problem हो, या WhatsApp कर देना in the class. Okay. But now you'll get that Today video voice also. is not clear. Today Voice voice is is- not clear. Voice is not clear. Once This you are checking from other device, tell them to check. It's clear. वॉइस प्लीज जरा अपना देखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी. वैसे तो सबके ठीक आ रहा है वॉइस, आप अपना चेक कर लीजिए. अच्छा, अब मैं ये सैलेड को जरा सा एवोकाडो को काट रही हूँ, स्लाइस कर रही हूँ मैं. आज तो बिल्कुल मक्खन फल जैसे निकला है. इसका हिंदी का नाम मक्खन फल होता है और मक्खन की तरह ही कट रहा है. अगर ये ना कटे ठीक से तो इसका मतलब ये कच्चा है. तो समटाइम्स बड़ा धोखा दे देता है ये, कई बार. इसको धोके ला. नाउ अब हमारी सारी चीजें तैयार है. नहीं, अभी एक चीज रह गई है, फेटा रह गया है. सो हमें फेटा करना है. फेटा में मैंने पनीर लिया है, पनीर में मैंने व्हाइट पेपर डाला है और व्हाइट पेपर के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी क्रीम. नाउ फेटा इज वेरी नमकीन एंड क्रीमी एंड सॉल्टी. सो नाउ जैसे 3 चम्मच क्रीम लिखा है, अगर आपकी क्रीम बहुत पतली है तो आप 2 ही चम्मच डालिए. अगर बहुत गाढ़ी है तो थोड़ी सी ज्यादा भी डाल सकते हैं. थोड़ा सा लेमन जूस. फेटा इज
nice and salty. Now any paneer you can use. ये मैंने क्रीम हिसाब से डाली, बिल्कुल ठीक डाली है. It's a soft mixture. I don't think I've added salt. नहीं, नमक नहीं डाला, तो मैं नमक डाल देती हूँ इसमें. अनीता मेरे को थोड़े छोटे चम्मच दे दो यहाँ. अब ये हमारा फेटा भी तैयार है. यू कैन यूज होममेड और बाजार का पनीर. सिर्फ फेटा में क्या क्या लिया मैम? आप प्लीज मैं उस पे पूछिए, चैट पे पूछिए. माइक ऑफ करिए. Yes, you can use Greek yogurt instead of cream. Now, अब हम अपना सैलेड बनाने जा रहे हैं. अब हमारा ड्रेसिंग तैयार है. ये हाँ, पनीर को आप पहले रफली क्रम्बल कर लीजिए. अच्छा, अब हमने डाली इसमें, हमने तेल लगा दिया था और 2 चम्मच के करीब मैंने देखते हुए कितना ये लेगा, इसमें साल्सा मिला दिया. Okay. Now we'll do the salad. We have everything ready. First of all, it's a good idea to spread a little dressing at the base. Why am I doing this? Because होता क्या है कि बहुत सारी ड्रेसिंग हम सब्जी के ऊपर नहीं मिला सकते, पर हमें थोड़ी ड्रेसिंग चाहिए तो सही, तो हम नीचे डाल देते हैं. एंड इस पे सैलेड डालने के लिए इट्स अ गुड आइडिया टू यूज दिस. Want to know what variations of salsa for dressing? If you don't want to use salsa, what are the variations of salsa? Variations of salsa. Okay. So जैसे ये हमने टोमेटो साल्सा यूज किया है, आप इसमें गुआकामोली भी बना सकते हैं, गुआकामोली का भी कर सकते हैं. अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, अभी बताएंगे. ओके, नाउ ये देखो, अगर आप ऐसे करके डालते हो तो आपका जो सैलेड है, इट कम्स आउट नीटर. फैलता नहीं है, नहीं तो आपका बहुत फैल जाता है. अब इस सैलेड के ऊपर आपने क्या क्या डालना है. थोड़ा सा कॉर्न है गया, चार्ड कॉर्न डाल रही हूं मैं अपना ये एवोकाडो स्लाइसेस डालूंगी. ये हटा दो यहाँ से. I can just put some, just fan them up. These are avocado slices that I fanned on one side. On the other side, I can just put these onion rings. थोड़े से ये मैंने ऊपर के लिए बचा लिए थे ना, कलर के लिए, ये मैं डाल रही हूँ ऊपर. ये हमारी ब्रोकली हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर ब्रोकली भी यूज करना है कर सकते हो, पर आप या एवोकाडो यूज कर लो या ब्रोकली यूज कर लो. पर ऐसे नहीं करना, सब जगह ब्रोकली भी डाल दी, सब जगह एवोकाडो भी डाल दिया. इट्स अ गुड आइडिया टू पुट थिंग्स टुगेदर लाइक दिस. तो जिसने जो लेना होता है वो ले लेता है अपने आप. ओके, एंड अब रह गया हमारा फेटा. ओके, एंड ये खोलना अनीता. एंड इफ यू लाइक, you can add some nachos, a little salsa. लगी गया ऑलमोस्ट पूरा, थोड़ा सा बचा है. एंड अगर आपको गार्निश करना है तो आप थोड़ा सा एक साइड पर पानी का एक हाथ लगाकर रख दो. 2 निकाल दो अच्छे अच्छे. थोड़ी सी रेड चिली पानी से चिपक जाएगी, ये कर दो. एंड आई हैड टोल्ड यू आई एम कीपिंग दी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, सो आई कैन जस्ट पुट दीज स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स हियर. एंड मैं ये नाचोस लगा रही हूँ
अगर आपका मन करे तो इसको चिप्स बनाकर आप बीच में भी मिला सकते हैं। सो आप फर्स्ट ये सब उठा दो अब यहाँ से। Our first salad is ready. इसका close up. Our first salad with salsa is ready. So we have chilies flakes because Mexican है, थोड़ा spicy होता है, तो ये garnish के लिए nachos आप ऐसे रख सकते हो, ऊपर लगाना चाहो ऊपर लगा सकते हो. You can serve them like this. Either ways, anyway, जैसे आपका मन करे. ये भी ले जाओ, nachos भी उठा लो यहाँ से, इसको एक तरफ रख दो. ये chopping board ले जाओ. Okay, now our first salad is ready. Now let's go on to the second one. Second one के लिए मेरा oven देखती हूँ मैं जरा. Oven preheat हो रहा है. Now the second salad is a roasted vegetable salad. Now उसके लिए क्या करना है हमने? सबसे ये उठाओ फटाफट. ये भी ले जाओ. Now what vegetables am I roasting? This is आलू. अब आलू कौन से लेने हैं? लाल वाले आलू. सफेद वाले आलू बहुत स्टार्ची होते हैं, स्वाद नहीं लगता. लाल आलू कौन से होते हैं? ये वाले लाल वाले आलू हैं. इनको छिलके के साथ मैंने ऐसे काट दिया है. मशरूम्स को ऊपर से काट के डंडी इसकी, और इसके आपने 2 हिस्से कर देने हैं मशरूम के. और आलू को छिलके समेत ही, अगर क्रिंकल नाइफ है तो क्रिंकल नाइफ से आपने इसे काट लेना है. तो ये भी हो गया, आलू भी हो गया. ये उठाओ चिप्स वगैरह सब फटाफट. No, we have the corn there. So corn is sweet, and the feta also offsets the arugula. And if you like, you can use pears in this. नाशपाती यूज कर सकते हो आप. अगर जैसे ब्रोकली लगाई है ना, तो ब्रोकली की जगह आप थोड़े से पेयर्स साइड पे डाल सकते हो फ्रूट के लिए. ओके, नाउ इसमें आपने क्या फेटा रेसिपी पूछ रहे हैं? फेटा रेसिपी आपके उसमें दी हुई है मैंने. क्रम्बल्ड पनीर है 75 ग्राम, 75 ग्राम, 2-3 चम्मच क्रीम के हैं, थोड़ा सा व्हाइट पेपर है, सॉल्ट है और लेमन जूस है. कुछ भी नहीं करना. पनीर को क्रम्बल करके सारी चीजें मिला देनी और चख लेना. तीखा होना, खट्टा होना चाहिए और नमक थोड़ा सा ऑन द हायर साइड. नाउ हाउ डू यू यूज दीज एस्पैरागस? ये एस्पैरागस पेयर है. ये मैम, may I interrupt in between? हाँ, I'm sorry, this is regarding the feta cheese. हाँ, बोलिए. ठीक है. फेटा मैंने बता दिया आपको अभी. मैम, उसको पनीर को क्रम्बल को हीट करना है कि उसको एज इट इज क्रम्बल करके ठंडे में यूज किया जा सकता है? That's the question. अच्छा, सॉरी, आप बंद कर दीजिए, मैं देती हूँ. पनीर को बस हीट नहीं करना है. पनीर को बस थोड़ा सा कच्चा पनीर को ही लेकर उसको ऐसे हाथ से क्रम्बल कर दीजिए. कुछ हीट वीट नहीं करना. हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा. अच्छा, अब आपने ये एस्पैरागस लेना है और एस्पैरागस को क्या करना है, आपने नीचे से इतना तोड़ देना है और बाकी के आपने थोड़ी सी, अगर आपका मोटे मोटे हैं तो ज्यादा छिलके निकलेंगे, अगर पतले हैं तो इसके छिलके नहीं निकलेंगे. जुकनी है, जुकनी के ये देखिए ऐसे 2 पीसेस कर लिए. ग्रीन येलो कोई भी जुकनी ले लीजिए. गाजर के आप राउंड भी ले सकते हैं, लंबे भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी. ये शिमला मिर्ची है ऐसे, और ये आपके अनियन स्लाइसेस हैं मोटे मोटे. अगर एस्पैरागस ना हो तो ऐसे बीन्स ले लीजिए, ऊपर से निकाल दीजिए दोनों तरफ से. ये आपके बीन्स हो गए. ये ग्रीन जुकनी भी है थोड़ी सी. सो आई ट्राई टू यूज वेरियस वेजिटेबल्स. ये मशरूम बहुत पानी छोड़ता है, तो मैंने इसे अलग आलू के साथ अलग कर दिया है. आलू में अगर पानी भी जाएगा तो वो ठीक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये सब्जियों में थोड़ा सा पानी तंग करता है. अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपने मिलाना है थोड़ा सा सब्जियों में ऑलिव ऑयल. दोनों सब्जियों में डाल देती हूं मैं. और इनमें मैंने डालना है थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी काली मिर्ची, फेटा में मैंने व्हाइट पेपर का इस्तेमाल किया था. वी हैव दिस नीता मेहता व्हाइट पेपर पाउडर, यू कैन यूज दिस. और इसमें मैं यूज कर रही हूँ
कश्मीरी मिर्च से कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है बिना तीखे. सो आई एम यूजिंग नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर. ये मैं यूज कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर. इसको एक बोल में मिला लीजिए. मैं तो जरा जगह की वजह से मैंने ट्रे में ही मिला लिया. ट्रे को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर दिया था, तो आप इसे बोल में अच्छी तरह मिला लीजिए और फिर एक ग्रीस ट्रे पे फैला दीजिए, या जैसे मैंने किया है एक ट्रे को ग्रीस कर लीजिए. ये बेबी कॉर्न्स भी बताना भूल गई. ये देखिए बेबी कॉर्न्स को मैंने 2 में काटा हुआ है. तो ये बेबी कॉर्न्स हैं, जुकनी है, ऐसे लंबी लंबी काटी हुई है. मोटी भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो. डिपेंड करता है सीजन टू सीजन और आपके पास टाइम कितना है. कम टाइम है तो थोड़ी पतली सब्जियां काट लीजिए. थोड़ा सा टाइम ज्यादा है तो थोड़ी मोटी काट सकते हैं. अच्छी तरह से. सो वी हैव ऑल आवर वेजिटेबल्स. अगर आप चाहते तो इन्हें हम पैन पर भी ग्रिल कर सकते हैं. ऐसे ही पैन पे ग्रिल हो जाती हैं. पर जब आप पैन पे कर रहे हो, जैसे मैंने कॉर्न किया था, बिना ज्यादा छेड़े उसको, वैसे ही आप करेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं. लाल आलू इज आलू which looks reddish. if you एक सफेद आलू लाके दिखाना. एक लाल आलू होता है और एक सफेद आलू होता है. तो लाल आलू जो होता है टेस्ट में बेटर होता है और उसका जो छिलका है वो बहुत पतला होता है उसका छिलका, तो वो खाने में बुरा नहीं लगता है. पर सफेद आलू का छिलका बड़ा मोटा होता है और कलर अंदर से तो सफेद ही होते हैं दोनों, मतलब अंदर से पीले ही होते हैं दोनों आलू. ऊपर से इट हैज अ हिंट ऑफ रेड. प्लीज आप अपना वीडियो टेबल पे पूरा नहीं आ रहा. वीडियो मतलब टेबल पे हमेशा की तरह सेटिंग नहीं है. आज सिर्फ आपका पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है. टेबल पे सेटिंग नहीं है ज्यादा. टेबल पे दिखाओ. मतलब हमेशा की तरह नहीं दिख रहा. थोड़ा और पास कर दो. अब ठीक है. नहीं थोड़ा पीछे करना मतलब थोड़ा पीछे कर लीजिए. अब ठीक. आप चैट पे लिख दीजिए प्लीज. हाँ, आप चैट पे लिखिए, जरा ज्यादा ठीक रहेगा. ऐसे गड़बड़ होता है प्लीज. अच्छा, ओके. और अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ. अब मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए ओवन में रख दिया है. अब इसकी पत्तियों पे आ जाते हैं, पर पत्तियों से पहले इसकी बनाते हैं ड्रेसिंग, जो है डेट की ड्रेसिंग. तो वो मैं बना लेती हूँ इसकी. Now, जो ये आलू है आजकल कोई खास ऐसा नहीं है, सारे सब्जी वालों के पास सब जगह मिल रहे हैं. आप बस बोलिए लाल वाले आलू दीजिए. कभी लाल ले आते हैं सब्जी वाले, कभी व्हाइट ले आते हैं. बट इफ यू से लाल वाले, तो वो छिलका उनका थोड़ा पतला होता है एंड इट हैज अ हिंट ऑफ रेड. ऐसा नहीं है कि लाल होते हैं, वो बोलते हैं उनको लाल आलू है. अच्छा, नाउ हम बना रहे हैं डेट एंड हैलोपिनो ड्रेसिंग. तो मैंने इसके लिए डेट्स ले ली है, थोड़ी सी 2 चम्मच जो सीडलेस डेट्स होती हैं. उनको चॉप करने की मुझे खास जरूरत नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी बड़ी सॉफ्ट सी थी, तो मैंने ऐसी डाल दी. अगर हार्ड हो तो चॉप कर लीजिए. आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ इसमें और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ. अब इन सब चीजों को मैं उबालूंगी और इसके बाद मैं इसमें बनाऊंगी ड्रेसिंग. तो मैंने इसमें 3 चम्मच तेल ऑलरेडी डाला हुआ है. अच्छा, अब हम जब हैलोपिनोज यूज करते हैं तो उसका पानी फेंक देते हैं. तो ये है हैलोपिनोज का पानी. तो ये आप पानी इस्तेमाल करेंगे. तो मैं अब इसमें तेल में डाल रही हूँ हैलोपिनोज का पानी. एनी डेट्स. और ये मेरे पास है हैलोपिनोज जिनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ. पर ये मैं इसमें मिलाऊंगी अभी नहीं, इसके पीसने के बाद काट के रख लेती हूँ सिर्फ. इट इज ब्राइन वाटर. जो हैलोपिनोज का जो पानी है, ये जैसे बोतल खोली थी तो ये इसका ऐसे ये पानी है, ये निकाला था मैंने. तो इसमें सॉल्ट भी होता है और थोड़ा फ्लेवर भी होता है हैलोपिनोज का.
नाउ इसको थोड़ा सा हम पकाते हैं 2 मिनट, ताकि सौंफ वगैरह की खुशबू आ जाए। थोड़ा सा ढक के पका लीजिए। ये हैलोपिनोज भी मेरे चॉप हो गए हैं। और अब इसके अंदर इसको ठंडा करके, और मैं क्या क्या डालूंगी, तेल डालूंगी, हैलोपिनोज नहीं डालूंगी, हैलोपिनो का पानी डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। हाँ, द ब्राइन इज गेटिंग यूज्ड। हम नॉर्मली ऑलिव्स का और इसका पानी फेंक देते हैं ना, तो ये पानी फेंकिए मत। ऑलिव्स का पानी आप कोई भी सॉस बना रहे हैं या कोई ड्रेसिंग बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करिए, पर याद रखिए इसमें नमक बहुत होता है, बट इट हैज अ नाइस ऑलिव का फ्लेवर। इन द सेम वे हैलोपिनोज के पानी में हैलोपिनोज का फ्लेवर होता है, तो आपने वो पानी फेंकना नहीं है, अपनी ड्रेसिंग वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, जो एस्पैरागस आपको बताई थी, इसमें आप ऐसे जैसे these are expensive things and you go specially to buy them, so you can put them in a glass of water like this in the fridge. They last for a good week. बहुत अच्छी तरह चलते हैं। ओके, अब ये हो गया है और इसको ठंडा करके मैं मिक्सी में डाल दूंगी। बस थोड़ा सा इसमें इसको पीस लेंगे। और इसके साथ में क्या मिलाऊंगी पीसने के समय, जो मैंने ये जो ऑयल और ब्राइन ऑयल इसी में डाल के ला दो। ओके, और फिर मैं बाद में मिलाऊंगी हैलोपिनोस। ये भी ले जाना बाद में, अभी ले जाओ, करो। ओके, अब इसका आपका जो प्लेटर है, अच्छा, for more recipes on salads, I have this book of salads and I have this wraps, rolls and sandwiches. Why I kept this was, जो आपकी ड्रेसिंग्स बनेंगी, जो बच जाएंगी, आप उसको रैप्स में, रोल्स में, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आप चिकन लेते हैं और इन सैलेड्स में चिकन भी डालना चाहते हैं, मैं बता भी दूंगी, तो ये 101 चिकन रेसिपीज हैं। इसमें सैलेड्स भी बहुत हैं और इंडियन और कॉन्टिनेंटल एंड थाई स्टाइल ऑफ इन कुकिंग चिकन भी बहुत है इसमें। एंड वी कम आउट विद अ नाइस रायता मसाला, जो आप ले सकते हैं रायता। और हम नेक्स्ट जो इंडियन क्लास है, फूड ऑफ इंडिया, तो उसमें जैसे हम जो सब्जियां आपको कोफ्ते वगैरह सिखाएंगे, बेक्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैं ऐसे आपको कोफ्ते सिखा रही हूँ जो बिना बेकिंग, बिना तले बना सकते हैं। अनफ्राइड कोफ्ताज हैं विद अ वेरी नाइस अवधी ग्रेवी। तो उसके साथ अगर आप रायता सर्व करना चाहें कि कोफ्ते बनाएंगे, मेहनत करेंगे, एक पराठा अच्छा से सिखाऊंगी, तो उसके साथ आप ये रायता बना सकते हैं रायता मसाला से। ओके, अब मैं अपना ले लेती हूँ और ये हमारी रोस्ट करते हैं, तो वो हाँ, जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी लिम्प हो जाती हैं। तो इसके लिए जो पत्तियां हैं वो सबसे क्रिस्प कौन सी होती है? आइसबर्ग लेटस इज द क्रिस्पेस्ट ऑफ ऑल। तो मैं यूज कर रही हूँ आइसबर्ग इसके अंदर। तो मैं इसे छन्नी में डाल लेती हूँ और थोड़ा सा अगर कलर के लिए आप डालना चाहें, तो ये जैसे आपकी है रोमेन लेटस, तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ और बहुत जो मोटा हिस्सा है उसका हटा देती हूँ, जो डंडी सी है नीचे। और इन पत्तियों को भी हमने क्या करना होता है, आपको याद होगा, पैड ड्राई करना है। ये हो गई, और इसको हमने करना है पैड ड्राई। तो मैं यहाँ पर एक कपड़ा रख लेती हूँ। ये देखिए, मैं उठा के डाल रही हूँ इसके ऊपर। और हल्के हाथों से इसे आपने करना है, जोर से नहीं दबाना। अब ये पत्तियों को हम इसमें डाल लेते हैं।
मेरे को ये पोंछ के दे दो। okay. और पत्तियों पे हमेशा हम क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं। तो हम पत्तियों पे पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये एक रूटीन है सैलेड बनाने के लिए। ड्रेसिंग से पहले पानी में भिगोए, पैड 2-3 घंटे ठंडे पानी में भिगोए, छाने, पैड ड्राई करें और फिर उसके ऊपर तेल लगा लें। अब हमारा वो जार ला दो सैलेड का, ये रहा, ये रख दो यहाँ पर और ये सब उठा लो। ये देखिए, अब ये ड्रेसिंग देखिए कितनी गाढ़ी है। कई बार मैंने आपको कहा था अगर आपकी ड्रेसिंग गाढ़ी होती है तो आप उसे आप पतला कर सकते हैं पानी के साथ। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे ये पतली हो जाए। पानी डाल के आई शेक इट, इसका ढक्कन ये रहा। अनीता इसको बंद करना, मेरे हाथ चिकने हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स का हाल देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है, जब तक और कर लेंगे हम। 5:45 बजे, कितने बजे तक है? 6:15 ना। अच्छा, इसको तो हिलाना है। ड्रेसिंग देखो, इट्स पोरिंग नाउ। मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। खोलना। हाउ डू यू वॉश द लीव्स? ठंडे पानी में 2-3 बार डालिए और उठाइए, जैसे पालक धोते हैं आप, उस तरह से। अवन में आपको देखना पड़ता है सब्जियों को, अबाउट 15 मिनट के करीब। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है सौंफ वगैरह का, बस नमक थोड़ा सा कम है इसमें। और थोड़ा सा मुझे खट्टा कम लग रहा है। 2 ऑप्शन है, या तो हैलोपिनो का पानी डाल दूं, वैसे तो अभी हैलोपिनोज भी मिलाने हैं इसमें, खट्टा वो हो जाएगा। ये हैलोपिनोज मैंने चॉप्ड डाल दिए। अब टेस्ट करती हूँ नमक डालने के बाद। द ड्रेसिंग इज नाइस। ये सारी इसमें निकाल के डाल दो जो भी है। अच्छा, अब हमारी लीव्स हो गई हैं और ये हमारा प्लेटर है। और क्या क्या चाहिए इसके लिए? हमें चाहिए गौडा चीज। अनीता मेरे को चीज दे दो फ्रिज के अंदर से, वो फ्रिज में रखी है। नाउ दिस इज गौडा चीज। इसके हमने शेविंग्स बनाने हैं। आप क्यूब भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये गौडा चीज मेरे पास खुली हुई पड़ी है, तो इसके मैं ऐसे पीलर से, अगर मैं बाहर निकाल के रखती तो ऐसे बनते नहीं फिर। ये ऐसे शेविंग्स, ये मेरे 2-4 शेविंग्स बन गए गौडा चीज के प्लेट पर। अच्छा, ओके। नाउ वेयर इज द ड्रेसिंग? अनीता कहाँ रखी आपने? ड्रेसिंग ला दो। ओके, नाउ आप क्या कर, चीज को आप स्टोर करने के लिए आप फ्रिज में रखिए या फ्रीजर में भी रख सकते हैं। नाउ ये बाद में करूंगी। सबसे पहले आप थोड़ी सी ड्रेसिंग पत्तियों में डाल दीजिए। ये देखिए कंसिस्टेंसी, बहुत गाढ़ी नहीं, बहुत पतली नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दी कंसिस्टेंसी। हमारे रोस्टिंग का टाइम हो गया है और अब मैं, Gouda cheese is a hard, mature cheese, it's a sharp cheese like a cheddar cheese. It is available at neetamehta.com or you can download the app, Neeta Mehta app. Okay. Now इसमें आप सबसे पहले ये पत्तियां डाल देंगे नीचे। सारी मत डालिए, थोड़ी डालते हैं हम पत्तियां, सारी नहीं डालते। और इसके ऊपर ये निकाल दो मेरे को। यहाँ रखो ना, वो भी निकाल दो, यहाँ रख दो। See, these asparagus you can leave whole if you want to. These carrots, कैंची देना,
You can cut them with the scissors or with a छुरी के साथ. अब यहाँ पर जरा गरम बड़ा है, ऐसे मैंने काट दी, यानी तो सब्जियां थोड़ी काटनी पड़ेंगी यहाँ. ये जो बड़ी बड़ी हैं, छोटी काट के रखो तो गरम बहुत है. थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, इतना गरम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. हाँ, इससे पकड़ लेती हूँ, ठीक है, ये बेटर है, टोंग से ले लेती हूँ. और ये जैसे जुकनी है, इसको थोड़ा सा आप काट लीजिए पीसेस में, थोड़ा ठंडा करके काट लीजिए. हमारे पास जरा सा टाइम का रेस्ट्रेन होता है. Then we have these, डालो थोड़ी सी सब्जी डालो. आलू बहुत सुंदर लग रहे हैं, आलू और मशरूम्स. Use microwave in which mode? माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे डालो. डालो डालो. ये देखो आलू ऐसे हो गए, थोड़ा पानी छोड़ा है इसने. कैन यू सी? तभी मैंने कहा था कि इसको अलग करते हैं क्योंकि ये पानी छोड़ देता है. तो ये थोड़ा सा आप डाल भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लग रहा है कलर. ओके, नाउ अब इसके बाद थोड़ी सब्जियां हमने डाल दी. अब जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ऐसे बनाइए. एक लेयर ग्रीन्स की डालिए, एक लेयर आपने वेजिटेबल्स की डाल दी. अब ये आपने ग्रीन्स डाल दिए ऊपर, और अब ये सारी सब्जियां ऊपर डाल दो. बस थोड़ी सी डाल दो, बस एक अलग अलग डाल दो. प्याज डाल दो एक ऊपर उठाकर. बस, नाउ दिस इज डन. इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़े से सेसमी सीड्स और चीज. हो गया, बस रहने दो, हो गया. इसको ले जाओ, कपड़ा दे दो. ये इतना ग्रीन्स मत स्प्रेड आउट करते हैं हम, विल जस्ट लीव देम ऑन द साइड्स. ये ले जाओ. सॉरी मैम, आई थिंक आई मिस्ड. आपने जो सॉस ड्रेसिंग बनाई थी, यू मिक्स्ड इट विद द ग्रीन्स. आप चैट पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? अब मैं बता रही हूँ आपको, फिर से अभी रिकैप करूंगी. थोड़ा सा अब आप लोग सुने. सैलेड का रेसिपी आपके पास है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. जो ड्रेसिंग बनाते हैं हमेशा वो एक साथ नहीं मिलाते, थोड़ी सी ग्रीन्स में भी मिलाते हैं, थोड़ी वेजिटेबल्स पे भी डालते हैं. तो मैंने ग्रीन्स जिसमें ड्रेसिंग मिली हुई थी वो डाली, फिर वेजिटेबल्स डाली, वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग डाली, फिर ग्रीन्स डाली, और फिर मैंने ये ड्रेसिंग डाली ऊपर से. सो ड्रेसिंग 2 बार ड्रेसिंग डाली है और 2 बार मैंने ग्रीन्स डाले हैं. और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा सेसमी और थोड़ा सा काला सफेद. काला भी मिला दिया मैंने, लिखा तो सफेद ही है. और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए, और थोड़े से ये एस्पैरागस स्पेयर्स हैं ऊपर, अच्छे लगते हैं. एंड इफ यू वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ ड्रेसिंग पे गार्निश करना चाहते हो, तो इस ड्रेसिंग में मैं थोड़ा सा कलर चाह रही हूँ. हुआ क्या है कि गरम गरम जब ड्रेसिंग को पीसो ना, तो उसका कलर थोड़ा सा खराब सा हो जाता है, इन द सेंस इट डजंट रिमेन दैट ब्राउन. तो मैं थोड़ा सा इसमें मिर्ची मिला रही हूँ, कलर. नीता मेहता मिर्ची मिला रही हूँ. एंड आई जस्ट डू लिटिल बिट हियर. एंड इसके ऊपर थोड़ा सा आप ये तिल और लाल मिर्च, काला सफेद तिल प्लेटर पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो. पूरे एजेस पे नहीं करने की जरूरत, थोड़ी सी जगह पर आप ये कर सकते हो. सो नाउ दिस आवर सैलेड इज रेडी. ये उठा लो यहाँ से, इसको पहले ये दिखा दिया. ये हो गया अनुराग. Have you seen this? Okay. Now this salad has been garnished with till, both black and white, and some chili flakes on top, and it's been dressed with the dressing in layers. Okay. And cheese हमने नहीं लगाई. अच्छा, and cheese नहीं लगाई हमने, थोड़ी सी चीज थोड़ी सी डाल देते हैं. थोड़ी सी चीज भी हमने रख दी, ठीक है, ऊपर. ओके, ये लगे. अच्छा नहीं, अब तो उठाएंगे ना. ओके, द नेक्स्ट सैलेड इज
beet salad which I'm going to do on the sticks. ये ले जाओ. Now इसके लिए ये green leaves ले लिए हमने, ये asparagus बचा है इसमें डाल देते हैं. बीट को कैसे करना है, क्रीम नहीं चाहिए. बीट को कैसे करना है, हमने बीट को हमने बॉईल करना है. प्रेशर कुकर में 2 सीटियां दी हैं और 2 मिनट रखा है. और इसको फिर मैंने क्रिंकल नाइफ से इसको मैंने काट लिया है. और ये दे दो मुझे, ये उठा लो. नाउ बीट्स को मैंने क्रिंकल नाइफ से काट लिया है. ऐसे क्रिंकल नाइफ आपको दिखाई थी मैंने, उससे काट लिया है. और उसके बाद इसको मैंने 4 टुकड़े कर लिए. तो बीट के ऐसे 4 पीसेस हो गए हैं छोटे. और अगर आपको थोड़े स्क्वायरिश चाहिए तो आप इनको नीट भी कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट, अगर बड़े लग रहे हैं तो थोड़े छोटे कर लो. क्यूब भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छे लगे. थोड़े ये मुझे बड़ा बीट है तो थोड़ा छोटा कर रही हूँ साइज. और बहुत मोटा नहीं, अबाउट 1/4 इंच थिक. तो ये मेरे बीट के स्लाइसेस हैं, ये एक्स्ट्रा है, इनको हटा देती हूँ. ले जाओ. ओके. अब ये बीट की जो ड्रेसिंग है वो कैसे बनानी है हमने. दिस इज अ बैल्सामिक ड्रेसिंग एंड अ होल ग्रेन मस्टर्ड. तो इसमें मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है, इसी में ड्रेसिंग बनाऊंगी. और मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबलस्पून होल ग्रेन मस्टर्ड. See, this whole grain mustard is so much better than the other mustard. Okay. और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 tablespoon of balsamic vinegar. ड्रेसिंग्स को हमेशा एक जार में बनाओ. यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होंगी, बच जाएंगी तो. और संभाली भी जाती हैं आराम से. हाँ, any brand would do. You can look up neetamehta.com also. And a little bit of honey, because balsamic is khatta. And थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च. And अब इसका ढक्कन लगाकर, अनीता ढक्कन. ओके. शेक शेक शेक, अच्छी तरह से हिला लीजिए इसको. यू हैव ए नाइस रानी ड्रेसिंग, नॉट वेरी पतला. नाउ टेस्ट परफेक्ट. नाप आपके रखा हुआ था नमक वगैरह. ओके. Now our beet is ready. Beet has been boiled and cut. थोड़ी सी ड्रेसिंग मैं बीट पे डाल रही हूँ. You can use lemon juice in place of vinegar. You can use the regular vinegar also. These dressings stay. इसमें तो देखो सारी ऐसी चीजें हैं जो preserved है, तो ऑयल भी खराब नहीं होता, विनेगर भी आपका खराब नहीं होता, हनी भी खराब नहीं होता. जब आप ना हो कि कोई चीज कितनी देर फ्रिज में रह सकती है, तो आप ये सोचिए, अगर टमाटर की बनी हुई है, घर के टमाटर की तो कम रहेगी. अगर बाजार की सॉसेज और विनेगर्स मिलाए हैं तो वो तो वैसे भी प्रिजर्व्ड रहते हैं, तो वो ज्यादा देर रहते हैं. अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको चाहिए बॉकनचीनी चीज. और ये पनीर भी दे दो. नाउ बॉकनचीनी नहीं चाहिए, बुराटा चाहिए इसके लिए. खैर दोनों दिखा देती हूँ, इनको पता होना चाहिए. ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुराटा, बॉकनचीनी? गौडा का बता दिया था आपको मैंने. बॉकनचीनी इज मोज़रेला, जो अभी इटालियन में मैंने यूज करी थी. इसमें ये क्या होती है बुराटा? इट हैज अ शेल ऑफ मोज़रेला एंड इट इज, अंदर जो इसके होती है, इट इज फिल्ड विद क्रीम. सो इट्स अ क्रीम कवर्ड विद मोज़रेला चीज. तो ये जरा उठा के शेप करनी बड़ी मुश्किल होती है. मोज़रेला तो आप उसको गोल गोल या स्क्वायर या कैसे भी काट सकते हो. यू कांट कट दिस. सो विल बी यूजिंग बुराटा.
बट सपोज नाउ दीज चीजेस आर वेरी पेरिशेबल एंड अगर एक बार खोल लो तो 2-3 दिन में यूज करनी पड़ती है, और जब खरीद के लाओ तो भी 10-12 दिन में इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मैं मुझे आइडिया आया कि आपको ऐसी चीज सिखाऊं जो आप हमेशा बना सको। तो आप क्या हो, आप हाँ किसको, तो हम बोलो। तो अब बोलूं क्या करूं, सुनाई सुनाई दे रहा है उनको कि नहीं? There is an internet issue today. अच्छा, now you can hear me. Okay. Now, हाँ I will. हाँ, अब ये जो मैंने पानी चढ़ा, मैंने अभी कुछ नहीं किया, जो मेरे को पता चल गया था इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो अब ये देखो पानी उबल रहा है मेरा 4 कप, और उसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने आपके नीचे नोट में दिया हुआ है, 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा सिरका, अबाउट अ टेबलस्पून ऑफ व्हाइट विनेगर, और इसमें मैं डालूंगी, अब गैस बंद कर देती हूँ, पानी उबल गया है, गैस बंद कर देती हूँ, और ये मैं क्या कर रही हूँ, पनीर के बॉल्स निकाल रही हूँ, ऐसे हाफ बॉल्स। ये ऐसे बॉल्स निकाल लिए, और उबलते हुए पानी को मैंने बंद कर दिया है, और अब इसके अंदर मैंने ये बॉल्स डाल दिए हैं पनीर के, दिख रहा है इधर, पानी में डाल दिया, और इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगी मैं। तो ये आपका जो पनीर है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आई वोंट से कि बिल्कुल मोज़रेला जैसा हो जाएगा, पर इट बिकम्स वेरी क्लोज टू मोज़रेला। रहने दो, कोई मांग लेता है। अच्छा, अब ये आपकी जो पत्तियां हैं, जो आपकी लेटिस है, इसको पानी से निकाल लेती हूँ मैं, और इसको भी मैं पोंछ लेती हूँ। ये उठा लो और एक प्लेट दे दो, वो डोंगा दे दो पीछे जो पड़ा है, ये गीला है, इसमें डाल दो पानी। अच्छा ओके, नाउ इसको क्या करना है हमें, थोड़ा सा, अगर इसमें ये हमने कट्ठी रोल करनी है, तो अगर ये बहुत मोटी मोटी इसकी ये डंडियां आएंगी तो ये तो रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। तो इसकी जो मोटी मोटी डंडी है बीच की, वो हार्ड स्टेम है, इसको मैं निकाल रही हूँ, हार्ड स्टेम्स को निकाल रही हूँ मैं बस। और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी ड्रेसिंग, and this I'll just toss up. Okay. Ab now I have these cocktail skewers. अब हम यहाँ करते हैं काम। ये एक टूथपिक ले लीजिए, थोड़ी सी लंबी ऐसी डेकोरेटिव टूथपिक्स मिल जाती हैं। All you have to do is, ये जो पत्ता है जिसपे मैंने ड्रेसिंग लगाई हुई है, इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। I'll make it into a stack and I will skewer this. ये उसके बाद मैं लगाऊंगी एक बीट। अब अगर आप बीट की जगह क्या ले सकते हैं, आप एवोकाडो ले सकते हैं। एवोकाडो को आपको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही स्लाइस करके ये ड्रेसिंग डाल देनी है। आप एक बीट भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। पतले पतले हो तो 2 लगा लीजिए, और इसके ऊपर आप लगाएंगे वो बुराटा। तो ये देखिए कैसे उठाते हैं बुराटा को, ऐसे उठाते हैं और इसका गोल सा बना लेते हैं, और इसको ऐसे यहाँ पे रख देंगे हम। और ये तो हो गया बुराटा वाला, और ड्रेसिंग हम डालेंगे ऊपर से और पर बाद में। अब हम एक बनाते हैं पनीर वाला। उसके लिए क्या करना है आपने, ये देखो पत्ती, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ,
ये पत्ती इतनी बड़ी है, बीच का हिस्सा इसका बहुत मोटा है, ये फोल्ड नहीं होगा, तो ये मोटा है। और अगर कभी ये ना हो और ये आइसबर्ग हो तो आप इसको भी ऐसे फोल्ड करके और इसका भी स्टैक बना सकते हैं। पर ये जो ब्राइटर ग्रीन है जरा ज्यादा सुंदर लगती है। और पत्ती का साइज कितना लेना है, अब आजकल कभी बड़ी बड़ी आ रही है बारिशों में, तो आप थोड़ी सी आधी पत्ती भी ले सकते हैं। ऐसे आपने पत्ती को मोड़ लिया, ये एक बीट डाला, एक और डाल दिया, और इसमें से मैं आपको अब पनीर निकाल के दिखाती हूँ। एक कटोरी दिखा दो, यहाँ से दे दो। ये जो पनीर के हमारे गोले हैं, कोई भी दे दो, कोई दे दो, ये हमारे पनीर के गोले हैं, बड़े सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ी सी ड्रेसिंग मिला देती हूँ इसके ऊपर, मिलानी हो मिलाइए, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। बीट के ऊपर हमने ये ड्रेसिंग मिलाई हुई है, पत्तियों के ऊपर हमने ड्रेसिंग मिलाई हुई है। अब ये हमने देखिए, पनीर बॉल्स को प्लीज बॉईल मत करिए आप, आपने पानी उबालना है, पनीर को उबालेंगे तो हार्ड हो जाएगा। अगर आप घर में मटर पनीर भी बना रहे हैं तो आप ऐसे ही पनीर को गर्म पानी में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। पर अगर आपने गलती से उसे उबाल दिया तो आपका पनीर बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। पनीर को बॉईल नहीं करना होता, सिर्फ गर्म पानी में भिगोना होता है। तो 5-7 मिनट उसे गर्म पानी में भिगो दीजिए, उबालना नहीं है। तो आप बुराटा ले लीजिए या ये पनीर बॉल्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम 3 ही बनाते हैं इस समय। और अब इसका थोड़ी सी जो ड्रेसिंग है ये इसके ऊपर और डाल दीजिए। दिस गोज वेरी वेल एज एन एपेटाइजर। पत्ती बहुत ज्यादा मत लगाइए, जैसे इसमें थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, इसमें मुझे ठीक लग रही है क्योंकि आज लेट्स बहुत बड़ी बड़ी आई है। थोड़ी सी अगर आपका मन हो, मैंने लिखा तो नहीं रेसिपी में, पर बाद में मुझे ख्याल आया, अगर मन हो तो थोड़े से चिया सीड्स आप व्हाइट के ऊपर डाल सकते हैं, तो वो अच्छे लगेंगे। और सर्विंग के लिए अगर आप चाहें तो, जैसे ये थोड़ा पतला है ड्रेसिंग, ये ड्रेसिंग देखिए एक कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये सैलेड के लिए तो बिल्कुल ठीक है, पर गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी पतली है, तो मैं इसे थोड़ी सी गाढ़ी कर रही हूँ मस्टर्ड मिलाकर। और इसके लिए आप कैसे करेंगे, एक एक डॉट डाल दीजिए इधर इसके आगे, और चम्मच के पीछे से इसे खींच दीजिए, होल ग्रेन मस्टर्ड। तो आप जैसे कोई लेगा और किसी को ड्रेसिंग और चाहिए तो आप ऐसे करके और ड्रेसिंग लेते हुए आप इसको खा सकते हैं, एंड इट टेस्ट्स वेरी नाइस लाइक दिस। The beetroot is crunchy, the cheese is soft and nice, and green adds to the taste. So this is how you serve your sticks. You have a fruit also here. जैसे आप एक नाशपाती रख सकते हो, आप सरदा या सफेद सरदा रख सकते हो, आप वाटरमेलन रख सकते हो, इसमें आप ये फ्रूट में ही बहुत अच्छी लगेंगी, फ्रूट एंड चीज एंड ग्रीन्स। सो इट्स अ वेरी नाइस पैलेट क्लेंजर बिटवीन योर एपेटाइजर्स। जैसे एक स्पाइसी एपेटाइजर खाया, उसके बाद एक ये सर्व कर दिया बीच में, तो उसमें फ्रूट वाटरमेलन हो सकता है, आपका ये पनीर बॉल हो सकता है, या बुराटा हो सकता है, और आवाकाडो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ इसका एक और बना देते हैं अनीता, एक ये बना दो और
और यहाँ लगा दो, या इसको साफ कर दो बस। अनीता इसको साफ कर दो बस, 2 रहने दो, साफ कर दो। Now the classes, the recipes have been done. If you have any questions, you can ask me now. Open your mics and Vinegar बोलिए। while boiling the paneer? Sorry, Why have you added the vinegar while boiling the paneer? because the vinegar adds a nice taste to it. Okay. ये And तीनों, does it affect हाँ the- हाँ, the salt and the vinegar adds a nice taste to it. Does it दिखा दो, affect the एक बार softness? दिखा दो सारा कुछ। Does it affect the softness also? Sorry, Does it affect the softness? it's softness के लिए, no, it's not because of the softness. The softness will be only being in hot water for a while will make it soft. And if we are using a homemade paneer, then This is homemade पनीर के भी गोले बना लो आप, देख लेना। बहुत homemade पनीर में कई बार वो बहुत होता है सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, पानी में जाके घुल ना जाए। So it's a good idea to use the ready-made paneer in this. If you are making homemade Excuse me, paneer, then you make it with salt and a little vinegar when you are doing छानने से पहले। विनेगर तो होगा ही, homemade जब बनाओगे तो salt डाल देना थोड़ा सा, ताकि Okay. फीका ना लगे। अच्छा। मैम इस वाले सैलेड में, बीट वाले सैलेड में आपने वेरिएशन के अंदर फ्रूट बताया है कि नाशपाती या हम वो हाँ, डाल सकते हैं, सरदा? आप हाँ बिल्कुल, आप सरदा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर वो व्हाइट ही पनीर है। मेरे को अभी ख्याल आ रहा है जब मैं देख रही हूँ, तो वाटरमेलन ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप वाटरमेलन ले सकते हैं क्योंकि सरदा भी सफेद है और ऊपर पनीर या बुराटा भी सफेद है, तो इतना मजा नहीं आएगा। बिकॉज द सैलेड, इसमें एक चीज मैं भूल गई, जरा दिखाना अनुराग, एक डाल सकती हूँ। मैम सैलेड दिखाई नहीं दे रहा। सैलेड दिखाई नहीं दे रहा, नहीं। इधर कर दो, मैम दिखा दो। इसमें ये लीफ खाने का नहीं है क्या? बिल्कुल खाने का है जी, लीफ खाने का है, वो बहुत बड़ा हो जाता था। मैं वाटरमेलन की जगह रेड ग्रेप भी ले सकते हैं क्या? रेड ग्रेप्स? हाँ, यू कैन यूज ग्रेप्स, यू कैन यूज चेरी टोमेटोज, और आप थोड़ा सा अगर प्लेटर गार्निश करना चाहते हो तो ये बिल्कुल फाइनली आपके स्लाइस्ड रेड एंड ग्रीन वो हैं आपके स्प्रिंग अनियंस, एंड ये रेड बेल पेपर्स हैं, पानी में डाले थे, तो इससे ये आपका प्लेटर बहुत अच्छी तरह से गार्निश हो जाता है, इफ यू लाइक। मैम ये होल ग्रीन मस्टर्ड जो है, इफ आई डोंट गेट इट, हाउ कैन आई मेक इट एट होम? नहीं, then don't make it at home, then just use the regular American mustard, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Do I grind that? No, don't grind, जो रेडीमेड मस्टर्ड सॉस होती है वीबा वगैरह की, वो ले ले, जो मस्टर्ड सॉसेज होती हैं। Where do you get asparagus in Delhi, Gurgaon, if you have any idea? I think हमारे तो I live in GK2 and my GK2 सब्जी वाला only gets it for me. Just tell your sabji walas to get it for you. They'll get it. all right, okay. मैम ये स्टिक्स वाला जो सैलेड है, इसके अंदर हम उसको अगर वाटरमेलन या जो भी फ्रूट लेते हैं उसको हम थोड़ा सोक कर लें क्या ड्रेसिंग में, या ऊपर से पोर करना बेटर रहेगा? I can't see the video. Beet is boiled. ऊपर से नहीं, थोड़ा सा मिलाना भी है, जैसे बीट रूट में मैंने मिलाया था ना, तो वाटरमेलन में थोड़ा सा बॉइल्ड, यस, प्रेशर कुक्ड बीट इज बॉइल्ड। मैम मस्टर्ड सॉस तो थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन रेगुलर सैलेड यू कैन मेक दिस एज अ रेगुलर सैलेड आल्सो विद द सेम ड्रेसिंग। बीट को कितना देर तक बॉईल करना है मैम? पनीर को सीट कर जाएगा। मैम मस्टर्ड बीट को सॉस कितनी खट्टा देर होता है तक ना? बॉईल करना है बीट को? हेलो, खट्टा होता है तभी खानीदार। Okay, okay. मैम आपकी आवाज ना बीच मैम बीट को कितनी देर तक बॉईल करना है? हेलो मैम वीडियो नहीं आ रहा है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है।